switching on your videos. Samruddhi, Nandini, Kartiki, Yash, Malhar, Omkar, all of you. Good morning, भैया. Good morning, everyone. I'm gonna wait for 10 seconds. I can see Kartiki has switched on her video. Waiting for Yash, Samruddhi, Nandini, and Aman. 10 more seconds. 10, 9, 8. भैया ये आप एक देखो ना, ऐसा ब्लर दिखेगा क्योंकि पीछे मेरे No problem, Yash. ब्लर है. No problem. Okay, so with that, quickly we will revise the norms of the classroom. The first norm is that you will keep your videos on through the entire duration of the class. Second rule is if you want to speak something, if you have any doubts, if you want to answer something, you will raise your hand. You will raise your hand before coming off mute and speaking. And the third rule is, what is the third rule? Yes, Prasad, go ahead. You would ever camera on. Camera is on, right? Camera is on first, and the second rule was Video basically is on. video is on, and the third rule was that if you want भैया to, आप वीडियो करते हैं रोज? yes, yes, and we are just discussing about the rules, and the rules are that you, if you want to speak something, you will raise your hand first. Okay, Yash? Cool. So with that, भैया पर मैंने कुछ नहीं किया अभी. no, Yash, not you, Yash Dimdime. I was talking about Yash Dimdime. There are two Sorry, Yash. भैया. There are two Yash in the classroom. There are two Samruddhi in the classroom. Okay, and I want all of you to sit straight. All of you who are sleeping or lying on the bed, they have to sit straight. I can see everybody in the video. Arya and Kartiki, back straight. Okay, back straight like bhaiya, and keep your notebook and pen or pencil with you. Maths notebook, pen and pencil with you. Once you are ready with your maths notebook, pen and pencil, give me a thumbs up. Great. So most of you are ready. Cool. So let's start. So in yesterday's class, we learned about subtraction. That subtraction is nothing. Subtraction is but just nothing but just the opposite of addition, right? Basically, in addition, we were adding two numbers. We were bringing two numbers together. In subtraction, we were counting how much excess is required to meet the target. Suppose I want 5 chocolates, I have already 3. Then how many extra chocolates will I need? So for that, I was going for subtraction. So now let's look at a new problem today. So what this problem is saying that Bhaiya now wants 2 chocolates 3 times a day. 2 chocolates 3 times a day. So basically now Bhaiya doesn't want 2 chocolates basically one time and 2 chocolates at other times. So if such was the case, we would have simply added. But this time भैया को क्या चाहिए? भैया को 2 चॉकलेट्स चाहिए 3 बार दिन में. दिन के 3 बार 2 चॉकलेट चाहिए. तो फिर टोटल कितनी चॉकलेट चाहिए होंगी? Basically that is the question which we are trying to figure out. 5. See, all of you, we just discussed rules for 1 minute and all of you started breaking right away when we started the class. Raise your hands, whoever wants to answer, and the rest of the people can type in the chat box. Yes, Kartiki, let's hear from you. 5. 5 chocolates, okay. Omkar? 5 chocolates, भैया. 5 chocolates. Prasad? 5 chocolates. 5 chocolates. So all of you are telling that 5 chocolates. 5 chocolate, भैया. ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं. भैया को 2 चॉकलेट चाहिए दिन में 3 बार. एक बार मॉर्निंग में भैया वांट्स 1. सपोज ये 3 टाइम को मैं एक बार सोचता हूँ कैसे हो 3 टाइम्स चाहिए होगी. एक बार मॉर्निंग में चाहिए होगी, एक बार आफ्टरनून में चाहिए होगा एंड एक बार इवनिंग में चाहिए होगा. ठीक है, तो मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. 12 आंसर है. सुनो अभी देखते हैं. अभी जो भी आंसर है कीप इट विद यू, वी विल लुक एट इट टुगेदर कि कितने चाहिए होंगे हमें. ठीक है, तो ये हमने देखा कि दिन के 3 बार हमको चॉकलेट चाहिए, मॉर्निंग,
आफ्टरनून एंड इवनिंग, भैया को 3 टाइम चाहिए दिन के। और कितनी चॉकलेट्स चाहिए? 2 चॉकलेट्स चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट हमारा? भैया वांट्स 2 चॉकलेट्स 3 टाइम्स अ डे, तो 3 टाइम्स मैंने ये यहाँ बना दिए, एंड 2 चॉकलेट्स चाहिए 3 टाइम, 2 चॉकलेट 3 बार चाहिए, तो 2 चॉकलेट सुबह चाहिए, इसका मतलब 2 चॉकलेट आफ्टरनून में चाहिए, एंड 2 चॉकलेट इवनिंग में चाहिए। तो अभी बताओ टोटल कितनी चॉकलेट हो गई? 6. Raise your hands. 6. And rest of you can go to the chat box. Yes, so most of you already got it right. It is 6, right? So what did I do? What did I do? If you observe closely, what did I do was basically I took 3 times, 1 time, 2 time, 3 time, और हर टाइम पे मैंने 2-2 चॉकलेट खाई, ठीक है। हर टाइम पे 2-2 चॉकलेट खाई, तो मेरे पास टोटल 6 चॉकलेट आ गए, ठीक है। मॉर्निंग में 2, आफ्टरनून में 2 एंड इवनिंग में 2, ठीक है। तो टोटल 6 चॉकलेट आ गए। तो कैन आई से दैट सिंपली व्हाट आई डिड वाज आई मल्टीप्लाइड 3 by 2. If I multiply 3 by 2, what is the answer which I will get? I'll get 6 only, right? So Yes. so Yes. so what is multiplication exactly? Multiplication में exactly हुआ क्या? अभी हम लोग इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, multiplication में exactly हुआ क्या। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 into 4, we all know 3 into 4 is 12, right? 3 multiplied by 4 is 12. If you look at the table of 3, what you will observe is that 3 multiplied by 4 is 12, right? See, whoever is coming off mute without permission, I will remove them from the class and put it in the waiting room for the entire duration of the class, right? This is the consequence which I will be setting. So please take it really strictly that you are not coming off mute without permission and disturbing the entire class. Is this clear? Give me a thumbs up if this rule is clear. I'm going to be really strict about this right now. Great. Good children. Okay, so we know 3 multiplied by 4 is 12. But what is this 4? If you look at this 4 closely, then what is this 4 exactly? This means 3 times 4. 3 times 4, यानी कि 3 को हम 4 बार लिख रहे हैं, right? This is what it means. तो अगर मैं 3 को 4 बार लिख के ऐड कर दूं, if I write 3 4 times and if I simply add them, then what is the answer which I am going to get? What is the answer which I am going to get? 3 plus 3, I am going to get 6. 6 plus 3, 9. 9 plus 3, 12. ठीक है, 9 plus 3, 12. So did I get the same answer? 3 into 4, 3 multiplied by 4 was 12, right? And if I did 3 plus 3 plus 3 plus 3, then also the answer which I got was 12. So instead of writing 3 plus 3 plus 3 plus 3 4 times, what I can do is I can simply write it as 3 multiplied by 4. 3 multiplied by 4 would simply mean the same thing. 3 multiplied by 4 would simply mean that we are adding 3 with itself 4 times. So instead of writing it so long, what we are doing is we are simply replacing this 4 threes with this simple multiply. With this simple multiply, we have replaced these 3 4 times as 3 multiplied by 4, and this already means that we are adding 3 with itself 4 times. So it becomes 12. If all of you are clear till now, give me a thumbs up. If you have any doubt so far, raise your hands. I want all of you to engage. People who are not giving any reaction, I'll put them in the waiting room too. Siddharth, Swaraj, Nishi, I haven't received any reaction from you. Samruddh, thank you, Samruddh. भैया मेरे को बताइए इसका आंसर कैसे कर सकते हैं हम लोग? Yes, you will raise your hand if you want to speak something. Firstly, I'll be taking doubts. Yes, Omkar, let's hear from you. What is your doubt? भैया मतलब ये रिवाइज हो रहा है, 3 into 4 12 हो रहा है और 4 into 3 भी 12 हो रहा है, मतलब वो रिसाइकल हो रहा है. हाँ, that is the same thing. That is the same thing. But do you have any doubt in this? कि 3 into 4 को 3 plus 3 plus 3 plus 3 में लिखना? No भैया. Great. Yes, go ahead now. भैया हमको ना सिर्फ ना 3 का टेबल बोलना होगा, 3 का टेबल याद रखना होगा और वो क्वेश्चन आएगा तो हमको देखना पड़ेगा. मेरे पास और एक आइडिया है. 4 वो दोनों मिलके 4 होते और 4 4 8 और 4 12 ऐसे होता है. डोरेमोन बड़ा मस्ती जीत भी चढ़ा होता है. You are saying to do it this way.
4 plus 4 plus 4. Yes, Yash, you are saying that we should do it this way. Is this what you are trying to say, Yash? या भैया क्या हुआ? आप ये बोल रहे हो क्या कि इसको 3 plus 3 plus 3 plus 3 के बजाय हम 4 plus 4 plus 4 कर सकते हैं? हाँ, so that is the same thing. You can flip it and you can solve it the other way around. Yes, 3 multiplied by 4 is 3 4 times and 4 multiplied by 3 is basically 4 3 times. ठीक है, अब 4 को 3 बार प्लस करोगे तब भी हमारा आंसर जो है वो 12 आ जाएगा. ठीक है, तो अब 4 को सिर्फ 3 बार प्लस करने से 12 आ गया और 3 को 4 बार हमको प्लस करना पड़ा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 छोटा नंबर है. 3 से आपको 12 बनाने के लिए उसको ज्यादा बार प्लस करना होगा एंड 4 से 12 बनाने के लिए कम बार करना होगा क्योंकि 4 जो है ऑलरेडी बड़ा नंबर है. So that is the logic behind it. So basically, if you see my screen closely now, we have tables from 1 to 10. Now, those who all remember these tables from 1 to 10, type yes in the chat box, and those who don't remember, type no. जिनको याद है tables, type yes, and जिनको नहीं याद है, type no. I can see Swaraj is remembering. Arjun remembers. Yes, great. Great, 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 great. Everybody remembers. Okay, I can see meanwhile Kartiki has raised her hand. Kartiki, go ahead if you have any question. भैया मेरे ना फर्स्ट 15 तक टेबल लर्न थे, मैंने छोड़ दिया टेबल लर्न करना, तो मुझे नहीं पता मुझे किस तक आते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. भैया मेरे को 12 तक आता है. 12. ठीक है जिन भैया मुझे 8 तक आता है. ग्रेट, कीप इट विद यू, कीप इट विद यू. बेसिकली मुझे 12 तक आता है टेबल. भैया मुझे 12 तक आता है. So now I would like to ask all of you how did you go about learning the tables? टेबल याद करती हूँ. हाँ, तो आप लोग टेबल्स कैसे याद करते हो? मेरे को थोड़ा बताओगे आप लोग टेबल्स को याद करने का आपका तरीका क्या रहता है? रेज योर हैंड्स. Raise your hands. I will ask 2 to 3 people. 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 40, 2 8 60, 2 9 80, 2 10 20. Who was this? निशी भैया. Nishi, please follow the rule. From next time, I'm going to put you in the waiting room. Okay? Then I won't remind you again. Okay? Raise your hands. Yes, I will hear from Prasad. Prasad, tell if you could tell me कि कैसे याद किया आपने. करके ध्यान में लगता हूँ रोज. रोजा बैठ के याद करते हो. ठीक है, great. So basically the expectation is that you should be remembering tables from 1 to 10. Okay, but if you don't remember, अगर आप बीच के कुछ नंबर भूल जा रहे हो, सपोज मान लो कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मेरे को करना है, एकदम से मेरे को याद नहीं आ रहा है कि क्या होगा इसका. सो बेसिकली यू शुड नो हाउ टू वर्क अराउंड इट. ठीक है, जैसे मान लो मेरे को 8 का टेबल मेरे को 8 6 तक ही आता है. 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 मेरे को पता है 48 होता है. ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 होता है 48. ठीक है, अब इसके आगे का मेरे को नहीं आता सपोज, और मेरे को 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 सॉल्व करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? बताओ, सिंपली मैं क्या करूंगा अगर मेरे को 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू 48 आता है एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 तक पहुंचना है? आई विल सिंपली लर्न करना. तो ठीक है, लेकिन लर्न करने में आप क्या कर रहे हो? आप खाली नंबर्स को मेमोराइज कर रहे हो ना, आप नंबर्स को याद कर ले रहे हो. ठीक है, बट मान लो अगर किसी दिन आप भूल गए गलती से, तब आप क्या करोगे? 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपको याद आ गया, लेकिन 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 याद नहीं आ रहा. देन व्हाट इज द वे टू रीच टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 7? रेज योर हैंड्स हु वांट्स टू आंसर. गो अहेड अर्जुन. भैया प्लस 4 7 times 4 plus. 7 times 4 प्लस कर दूं इसमें मैं? Yes. So 7 times 4 will be 28. So you are telling me to add 28 to 48. Can I? Okay, Arjun, we will look at it if it is correct or wrong. Please, can I? Yeah. Kartiki, I can see that you have raised your hand. I will ask. भैया. Coming to you. हाँ, go ahead, Arjun. 8. You will add 8. And why would we do that? हमें टेबल नहीं याद आएगी तो ये करेंगे हम. नहीं, but 8 ही क्यों ऐड किया? 16 क्यों नहीं ऐड किया?
या 10 क्यों नहीं ऐड किया? Why only 8? Because a table is first number is 8. Right. I want more clear explanation. You are almost close, Arjun. Let's hear from Kartiki. Kartiki, go ahead. भैया हमें याद नहीं आ रहा हो ना, तो आपके 6 तक मतलब टेबल ने नंबर पर, फिर वहां पर कौन सा 48 है ना, तो हमें क्या करना है 49 50 51 52 53 50 54 55 56 ये हो गए 8 टाइम्स, मतलब वो आंसर आ जाता है। थैंक यू सो मच कार्तिकी. यस, यू टू आर ऑलमोस्ट क्लोज. ठीक है, बट इसका लॉजिक क्या हो रहा है बेसिकली? सी, जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हमने देखा था कि 3 4 बार ऐड हो रहा है तो 12 आ गया. सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 कहना ही से क्या 8 जो है 6 बार ऐड होके हमारा 48 आ रहा है. अगर मैं 8 को खुद से 6 बार ऐड करते जाऊं देन क्या मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर 48 आएगा? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर विद मी. ग्रेट. तो मेरे पास ऑलरेडी 8 को 6 बार ऐड करके 48 आंसर आ गया. ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 का क्या मतलब होगा? सिंपली कि 8 7 बार एडेड है, 8 6 बार एडेड होके 48 आ गया. ठीक है, सो 8 7 बार ऐड होके क्या होगा? 6 बार ऑलरेडी पहले से एडेड है, सिर्फ मेरे को एक बार और ऐड करना है. तो सिर्फ मैं एक 8 और ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 56 आ जाएगा. आ गया कि नहीं आ गया? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली मान लो मेरे पास एक और केस आ गया. मेरे को 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 तक याद है. ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 आई नो इज 40. ठीक है, एंड मेरे को 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 आंसर करना है कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या होगा. ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या होगा. बताओ क्या कर सकते हैं? 72 भैया आंसर. 72 तो ठीक है, बट मेरे को याद नहीं आ रहा है. अभी तो आपने याद कर रखा है, मान लो आपको याद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? भैया Raise your hand. Raise your hand. Yes, raise your hand. Raise your hand if you want to answer. I'll look at who other people are raising. Janvi, would you like to try? What will you do to solve 8 multiplied by 9? Janvi, try करो. Janvi, I'm waiting for you. Come off mute and try. Try करो. 8 multiplied by 9 का क्या मतलब है? कि हम 8 को भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है. Janvi, there might be some connection issue from your end. Please rectify that. ठीक है. Who else will answer? Shravani, would you like to try? What will be 8 multiplied by 9? नो भैया. Shravani, you have to try. Try करो, साथ में हम लोग we will work it out together. देखो 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 8 5 बार एडेड है. 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मतलब 8 9 टाइम्स एडेड है. तो 5 बार ऑलरेडी एडेड है. मेरे को कितनी बार और ऐड करना है? 4 टाइम्स और ऐड करना है. 1 सेकेंड भैया, मैं सोच के बताती हूँ. ठीक है, कार्तिक की आपने ऑलरेडी बता दिया. लेट्स हियर फ्रॉम अयान. आई कैन सी अयान हैज रेज्ड हिज हैंड. अयान, गो अहेड. Ayan, I can see your hand is raised. Ayan, go ahead. Ayan, I'm asking you to come off mute. Switch on your video and come off mute and answer. Okay, Ayan, I will. Yes, Ayan, go ahead. If you came off mute, please come off mute and answer. आपने मुझे अनम्यूट किया. हाँ, I did that by mistake. Ayan, come off mute. Okay, Ayan, I'm going to भैया guess. आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, okay, Ayan, I will speak to you after the class. What is the problem? Yes. Yes. So, Samruddhi, let's hear from you this time. What will be your strategy to solve?
we will add 8 9 times. Yes, you will add 8 9 times, but wouldn't it take longer? You already have 8 added 5 times in front of you. 8 multiplied by 5 is 40. So 8 multiplied by 9 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग चलाओ. मैथ्स में थोड़ा तो दिमाग चलाना पड़ेगा. सभी दिमाग चलाओ. can see 4 hands are raised. Yash, Vardhan, go ahead. भैया मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मेरे पास टेबल याद रहेगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा. वो नहीं रहेगा तो मैं मतलब ये करूंगा, क्या होता है उसको, मतलब वो समृद्धि जैसा ही करूंगा. 8 बारी 9 बारी 8 प्लस करूंगा. प्लस करोगे, ठीक है. चलो अब मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ मैं कैसे करूंगा इसे. ठीक है, मेरे पास 8 5 टाइम्स ऑलरेडी एडेड है. ठीक है, 8 5 बार ऑलरेडी प्लस है. तो मैं क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 8 को, जैसे समृद्धि बोल रही है 9 टाइम्स 8 को प्लस कर दो, 1 2 wait, what I will do is I will write it this way. मैं 9 टाइम्स प्लस कर दूं, 8 प्लस 8 प्लस, ठीक है, 9 टाइम्स मैंने प्लस कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बट इसमें से मेरे पास 8 टाइम्स 5 का आंसर 40 है. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 8 जब 5 बार प्लस हो चुका है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 40 मेरे पास ऑलरेडी है. 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ऑलरेडी मेरे पास 40 है, राइट? है कि नहीं? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर विद मी टिल नाउ. ग्रेट. 8 टाइम्स 5 इज 40. अभी मेरे पास क्या बचा है? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8. तो कैन आई से दैट आई जस्ट नीड टू ऐड 8 4 टाइम्स. इफ आई ऐड 8 4 टाइम्स, व्हाट विल आई गेट? I will get 32. ठीक है, 8 टाइम्स 5 ऑलरेडी मेरे पास 40 था, एंड 8 टाइम्स 4 when I add it I will get 32. 8 8 16, यहाँ पे 8 8 16, 16 और 16 32 हो गया. ठीक है, 40 पहले से था, अभी 32 आ गया. तो अगर मैं 40 में 32 ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? I will get 2 and 7. I will get 72. Is this the same answer which I have for 8 multiplied by 9? Just check me if we got at the same answer or not. Give me a thumbs up. Now Samruddhi is going to explain me कि ये कैसे काम किया, 72 कैसे आया हमारे पास. It comes by you firstly added 8 5 times, then it becomes 40, and then when 8 4 has left, so you added that 4 all 8 that are remaining, and then the answer comes 32, and then you added 40 and 32, and the answer becomes 72. Yes, thank you so much Samruddhi, absolutely correct. So I hope all of you understood, but doing it took me a lot of time. ठीक है, इससे कोई फास्टर तरीका हो सकता है करने का? Assuming कि मेरे को 8 multiplied by 9 मेरे को याद नहीं है, कोई फास्ट तरीका हो सकता है इससे? सोचो. Yes, Malhar, go ahead. You can see Malhar wants to share something. भैया इस तरीका है, हम टेल बार लल करें. क्या करें? लल टेल बार लर्न कर ले, याद कर ले. पर यही तो केस है, सी हमको याद ही नहीं आ रहा है, क्या करें? हमने देखा कि हम एडिशन कर करके सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमको आधा अधूरा याद है, मान लो 8 5 तक याद है हमको, आगे का नहीं आता, तो हम ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई फास्ट तरीका है और करने का. लो भैया, देखो मैथ्स में याद जितना कम से कम करो ना उतना अच्छा है. ठीक है, क्योंकि मैथ्स में आप लिमिटेड चीजें ही याद कर सकते हो, उसके बाद आपको अपना दिमाग ही चलाना है.
तो अभी हम दिमाग चलाना ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 करना है, ठीक है। तो व्हाट वुड आई डू, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, what I will do is I will do 8 multiplied by 10, ठीक है। 8 multiplied by 10 is very easy, all of you might have already learned it, ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड में, कि जब नंबर 10 से 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, what we do, we simply write the number itself and we count the number of zeros and we write it, and that is what we get the answer. So 8 multiplied by 10, I got it as 80, ठीक है, I already know it will be 80. 8 multiplied by 9 करना है, ठीक है। तो 8 multiplied by 10 means कि 8 खुद से 10 टाइम्स प्लस हो रहा है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मींस कि 8 खुद से 9 टाइम्स प्लस हो रहा है। तो 10 टाइम्स यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे 9 टाइम्स प्लस हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टाइम प्लस हो जा रहा है, यहाँ पे 8 जो है वो एक एक्स्ट्रा टाइम प्लस हो जा रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ कि नहीं? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर विद मी राइट नाउ, ठीक है। सो यहाँ पे सिंस 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 8 होके 80 आ रहा है, तो अगर मैं इस 80 में 8 माइनस कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे को, मैं वापस 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 पे पहुंच जाऊंगा? गिव मी अ थम्स अप, पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा, राइट ना। तो जब मैं इसको यहाँ पे माइनस करूंगा तो क्या होगा, कल ये हमने बोरो सीखा था, 0 है तो यहाँ बोरो होके हम 10 कर देंगे, 8 जो है यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 10 माइनस 8 इज 2 एंड यहाँ पे 7 जो कट के हुआ था 7। तो क्या आंसर आ गया? 72। क्या ये सेम आंसर आ रहा है? वाओ, इसी सेम आंसर। So now give me a thumbs up if all of you were able to understand. So what did we learn? We learned that even if we don't remember the entire tables, we can work around, ठीक है। We can work around, we can use addition, we can use subtraction to reach at the answer, right? So this is what I wanted all of you to learn basically, कि आपको जितना याद हो पा रहा है आप याद करो, अगर याद नहीं हो पा रहा है तो इस चीज का प्रेशर नहीं लेना कि याद करना है, रटना है इसको, ठीक है। You can obviously all the times you can leverage your concepts of addition and subtraction to arrive at the desired number, ठीक है। चलो, with that we will quickly move to next part. Now what is happening for smaller numbers, हमने देखा कि 3 times 4 था तो हमने 3 को 4 times ऐड कर लिया, ठीक है, हमने टेबल्स याद कर ली, ठीक है। But what happens when the number becomes large? When the number becomes large, what is happening? भैया's hunger has now increased, ठीक है, भैया को बहुत तेजी से भूख लग चुकी है अभी, एंड अभी 3-4 चॉकलेट से काम नहीं चलेगा, अभी भैया को 300 चॉकलेट चाहिए 40 टाइम्स अ डे। 40 टाइम्स अ डे, दिन में 40 बार 300 चॉकलेट चाहिए। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हो रहा है कि 300 मल्टीप्लाइड बाय 40 करना है, 300 मल्टीप्लाई बाय 40 करना है, मतलब 300 को खुद से 40 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। 300 प्लस फिर 300 प्लस करते जाना है 40 तक। तो करते करते मेरा पूरा पीपीटी भर जाएगा, लेकिन मेरे पास आंसर निकल के नहीं आएगा। So can any one of you suggest me a faster way over here? What will be the ideal way to do this? वो भैया मेरे पास इसका आंसर है। क्या आंसर है? 12,000। कैसे? क्योंकि दिन में 40 बार खाएंगे तो मल्टीप्लाई किया मैंने, तो वो आया 12,000 चॉकलेट्स। आपने क्या कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई किया या पेन पेपर से सॉल्व किया? मैंने पहले खुद से देखा, मेरे को लगा गलत, इसीलिए मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। Okay, Yash, thank you. Okay, so basically the idea over here is to learn not to use calculator. All of you don't use calculator for the class, ठीक है? During this duration don't use calculator. कैलकुलेटर से you can do it right now, लेकिन एग्जाम में खुद से ही करना होगा ना, तो इसलिए we will learn how to do it by ourselves. So see, so basically just now I gave you a short trick, ठीक है। I told you when we have zeros after number, what we will do is we will simply multiply the first non-zero digit which we are seeing. यहाँ पे नॉन जीरो जो डिजिट है वो है 3 है, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट जो है वो 4 है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज व्हाट? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो अभी सबको पता है ना क्या होता है? टाइप इट इन द चैट बॉक्स quickly, व्हाट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4? 12 सबको 12 पता है, ठीक है। तो 12 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करके लिख देंगे जो दोनों डिजिट्स में है। तो दोनों को काउंट करो एंड बताओ कितने जीरोस में लगाऊंगा 12 के बाद। टाइप इट इन द चैट बॉक्स, 12 के बाद कितने जीरोस आएंगे?
3 zeros आएंगे. Karthik is saying 3, Yash is saying 3, Omkar is saying 3. One of you said 2. अच्छा, Omkar did it by mistake. Okay. So all of you are at a 3. So yes, that's what we will do. We will put 3 zeros. 1, 2, 3. So that is what the answer which we have got. 12,000. So if you simply keep on adding 340 times, na, 300 plus 300, 300, that is the same answer which you will get. But it would have taken a lot of time, and see how fast we were able to do it now. So if you have any doubt in this, raise your hand, and if you are good to go, give me a thumbs up. Kartiki, yes, go ahead. भैया मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमें मतलब 400 आए 40 टाइम्स, तो 13,000 आएंगे क्या? 13 क्यों आएगा? सी देखो, मैंने क्या बताया आपको कि आपको सिंपली नॉन जीरो डिजिट को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर में. तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है? 4. यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है? 3. ठीक है, तो यहाँ पे 4 into 3 कर दो, क्या आ गया? 12. ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो दोनों नंबर्स में. यहाँ पे 2 जीरो है, राइट. यहाँ पे 1 जीरो है, राइट. टोटल जीरोस कितने हो गए? 3. बस उन 3 जीरो को उठाओ और यहाँ पे डाल दो. 1 2 3. गॉट इट? यस. लेट्स लुक एट इट अनदर वे, वन मोर टाइम. ठीक है, 300 को क्या मैं 3h लिख सकता हूँ? दिस कॉन्सेप्ट वी लुक्ड एट इट in place value class. 300 simply means 3 hundreds, right? Like expanded form क्या होता था हमारा? 3 at 100 position was 3 multiplied by 100. ठीक है, तो मैं इसको 3h लिख सकता हूँ, राइट. इसको मैंने 3h लिख दिया. 3h multiplied by 40. ठीक है, 3h multiplied by 40. अब 4 multiplied by 3 is 12. ऑलरेडी मेरे को पता है 12 है. ठीक है, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लिख दिया मैंने. ठीक है, अब यहाँ 100 में कितने जीरो आ रहे होते हैं? इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना. 3h मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 100. इसका मतलब सिंपली ये मल्टीप्लाइड बाय 100 है. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या होगा? सिंपली ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट. कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 द सेम नंबर इटसेल्फ होता है. 1 की आप टेबल देखोगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, राइट. 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 3 होता है, राइट. So 120 multiplied by 1 will be 120. यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा थे, बट यहाँ पे 1 नहीं होके यहाँ पे 100 है, राइट. तो 100 मतलब 2 जीरो एक्स्ट्रा थे, तो इसलिए आपके यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे और ऐड हो गए. तो ये लंबा तरीका हो गया. ठीक है, शॉर्टकट हमारे पास क्या है? सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो नॉन जीरो डिजिट्स को. ठीक है, एंड जीरो वालों नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो एंड पीछे लिख दो. ठीक है, सो दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फॉर द नंबर्स जहाँ पे पीछे आपका 0 0 0 चल रहा है. ठीक है, इफ यू ऑल आर गुड टू गो, गिव मी अ थम्स अप. ग्रेट. सो यहाँ पे सेम चीज आपकी एक्सप्लेन की हुई है. उधर क्वेश्चन था. मेरे यस क्वेश्चन यस भैया, यस. उसमें मतलब हमने ऐसे किया 3 मल्टीप्लाई 4 12 आंसर आता है, और वो 3000 का मतलब उधर का 0 बचा और इधर का 0 बचा, तो वो मिलके 12,000 करेंगे ना हम. यस यस. देखो एक बार फिर से देख लेते हैं. सी बेसिकली आप क्या करोगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो नॉन जीरो डिजिट्स. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमको पता है 12 होता है, राइट. एंड देन फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस जितने जा रहे हैं इन दोनों डिजिट में उनको उठा के सिंपली इसके 12 के पीछे रख दो. देन दिस इज व्हाट द आंसर इज. मतलब वो बचेगा, जो 0 बचेंगे वो हम मतलब वो नंबर आएंगे उसके पीछे हम डालेंगे. यस, गॉट इट. यस. ग्रेट. तो अभी क्या हो रहा है? नाउ भैया वांट्स 245 चॉकलेट्स 8 टाइम्स अ डे. ठीक है, 245 चॉकलेट 8 बार चाहिए दिन में. इसका मतलब 245 को 8 टाइम्स ऐड करना है.
अगेन 245 को 8 टाइम्स ऐड मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगता जाएगा, तो ये मेथड करने का तो कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एडिंग 245 8 टाइम्स. So what else can we do? Can we do it like we did it for the previous question? 400 multiplied by 30. वैसे भी नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे जीरो है ही नहीं, राइट? जीरो, अब जीरो आगे पीछे कहाँ डालोगे, यहाँ कहीं जीरो है ही नहीं. तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब आपको 245 मल्टीप्लाइड बाई 8 करना है, राइट? 245 मल्टीप्लाइड बाई 8. तो इसको करने का क्या तरीका है? सो द वे वी डू इट इज बाय लैटिस मेथड. I don't know if all of you remembered lattice method from third standard. Those of you remember it from third standard, quickly type yes in the chat box. Type yes in the chat box if you remember lattice method. No, so I can see most of you are not aware of this method. Okay, so for solving this kind of multiplication now, you use lattice method. So basically lattice method is something which is applicable of any number. आपको कोई भी नंबर मैं उठा के दे दूं, आप हर किसी का जो मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन है आप इस लैटिस मेथड से निकाल सकते हो. सो वी विल लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड. Why it is the most important method? Because you can solve any multiplication problem by using lattice method. So basically what we will do in this, we will write both the numbers in its expanded form firstly, right? So basically we have 245 and 8. Okay, so we will write it in its expanded form. So what will 245 becomes? 245 will become in its expanded form, it will become 240 and 5, right? What will be the expanded form for number 245? The expanded form will be 2 multiplied by 100, which is 200, 4 multiplied by 10, which is 40, and 5 multiplied by 1, which is 5. So I am getting 200, 40 and 5. Okay, so expanded form of 245 is this. Then what I will do is I will arrange this number. Basically I will arrange this number horizontally. 240 and 5 को मैंने कॉलम बना के अलग अलग कॉलम में डाल दिया. Cool. If you mark the positions as well, this is unit, this is tens and this is hundreds. ठीक है. उसके बाद सेकेंड नंबर मेरे पास क्या है 8. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अरेंज इट वर्टिकली. तो ये यहाँ पे मेरे पास ये वर्टिकल है, ठीक है, एंड ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. जो पहला नंबर है उसको मैंने हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया, जो दूसरा नंबर है उसको मैं वर्टिकली अरेंज कर रहा हूँ. ठीक है. तो वर्टिकली अरेंजमेंट में 8 जो है मेरा वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है. 8 मेरा यहाँ आ गया. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दिस 8 विच एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ ईच नंबर. ठीक है. नाउ इट हैज बिकम इजी फॉर मी. If I multiply each 8 with each expanded form, now I have 0 at end of each number. ठीक है. यहाँ पे 0 मेरे को मिल रहा है, पहले दो नंबर के एंड में तो 0 मिल गया, एंड दूसरा नंबर बहुत स्मॉल है, तो अगर मेरे को टेबल याद है तो वो मैं सिंपली उससे सॉल्व कर लूंगा, राइट? सो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 200 करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? आई विल सिंपली डू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2. 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16. सो 16 मैंने यहाँ लिख दिया, एंड देन उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस काउंट किए दोनों डिजिट में. यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो सिंपली 16 के बाद 2 जीरो आ गए, राइट? अब उसके बाद हम एक स्टेप आगे मूव किए. यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 8 मल्टीप्लाइड बाय 40. सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली मल्टीप्लाई 8 बाय 4 एंड देन काउंट द नंबर ऑफ जीरोस. 8 multiplied by 4 is 32. Okay, 8 multiplied by 4 is 32. This I can recall from the table. Count the number of zeros. 1 0 only over here, no zeros over here, so I'll put 1 0 over here. Then I will move one more step forward. What I have over here, I have 8 and 5. 8 multiplied by 5 is simply 40. This I can remember from table. So what I have got, 8 multiplied by 200, 1600, 8 multiplied by 40, 320, 8 multiplied by 5, 40. So I have got these three numbers. If you are clear till now, give me a thumbs up. If you have any doubt so far, raise your hands. So most of you are clear. Okay. So now once we have arrived at these three numbers, ठीक है, एक बार जब हमको ये तीनों नंबर मिल गए, the story doesn't end here. ठीक है. अभी हमको इसका बेसिकली क्या निकालना है? हमको इसका निकालना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है. 245 मल्टीप्लाइड बाय 8 क्या आ रहा है. अभी हमारे पास क्या आया है?
हमारे पास अभी बेसिकली ये है कि 208 टाइम्स क्या है, ठीक है। 200 चॉकलेट को जब आपने 8 बार प्लस किया तब आपके पास 1600 है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली ये हुआ 40 चॉकलेट्स को जब आपने 8 टाइम्स प्लस किया तो आपके पास 320 चॉकलेट्स आ गई। एंड 5 चॉकलेट्स को जब आपने 8 टाइम्स प्लस किया तब आपके पास 40 चॉकलेट्स आ गई, ठीक है। नंबर हमारे पास 245 था, उसको हमने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। 208 टाइम्स 1600 आ गया, 48 टाइम्स 320 आ गया, एंड 5 8 टाइम्स 40 आ गया। पर हमको आंसर चाहिए 245 की। एनी गेसेस अभी हमें अगला क्या करना चाहिए कि जिससे हमको 245 8 टाइम्स क्या होगा वो मिल जाए। ऑलरेडी हमको 208 टाइम्स मिल चुका है, 48 टाइम्स मिल चुका है, एंड 5 8 टाइम्स मिल चुका है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आई वांट एवरीबडी टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। सबको सोचना है। सिर्फ ओमकर हाथ खड़ा कर रहा है, बाकी लोग टाइम लो इफ यू वांट टू टेक टाइम, बट डू थिंक अबाउट इट, ठीक है। यस ओमकर। तो जी मैं जान रहा हूँ। भैया हमें भाई हाँ ओमकर बोलो। 1600 हाँ भैया 16 हमें 1600 320 और 40 को मतलब हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस करना पड़ेगा। व्हाई वुड वी डू दैट ओमकर? क्यों प्लस करना पड़ेगा? बिकॉज हमें फाइनल आंसर मतलब फाइंड करना है। तो वो प्लस करने से फाइनल आंसर कैसे आ जाएगा? मतलब 0 + 0 + 0 is equal to 0, and second 0 + 2 is 2, and 2 + 4 is 6. So here is 6, and we just go here, and here also 6. 6 + 3 here is equal to 9, and 9 plus 9 Okay Omkar, Omkar, I'm gonna pause you there. Okay, whatever you thought, it is fine. Let's keep that thought. Okay, I'm going to give you a short example. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो मेरे पास 4 × 2 है, ठीक है। 4 × 2 तो सभी को पता है क्या होता है। 4 × 2 मतलब 4 + 4, ठीक है। क्या होता है ये? 8 होता है। 4 × 2 is 8। यस। अगर इस 4 को मैं 2 + 2 लिखूं, then is it right? Can I write it as 2 + 2 is 4 को? no भैया no भैया Why Omkar? Why is that? बिकॉज हमें मतलब 4 + 4 ही लिखना पड़ेगा। 4 + 4 तो नहीं है ना। मतलब 4 is equal to 2, मतलब हमें 4 को 2 टाइम मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा। हमें 2 को 2 टाइम्स नहीं लिखना पड़ेगा। 4 × 2 हमारे पास 8 है, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस 4 × 2 का 8 का इसका सिंपली मतलब ये हो गया ना कि 4 + 4 किया आपने, ठीक है। 4 + 4 किया तो आपका 8 आ गया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस 4 को क्या मैं 2 + 2 लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता मैं इसको? मैं 2 + 2 ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। आगे का मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं, राइट। अगर मैंने इसको 2 + 2 लिख दिया, राइट, एंड आगे इसको मैंने सेम चीज रखी, देन इज देयर एनीथिंग व्हिच आई एम डूइंग रॉन्ग? मैथ्स के लॉजिक हर जगह अप्लाई होते हैं। देखो मैथ्स में हमने सीखा है कि वेट, स्टॉप शेयरिंग हो गया। देखो 4 × 2 हमारे पास 8 है। 4 को व्हाट आई कैन राइट इज 2 + 2। 4 2 + 2 होता है कि नहीं होता? पहले तो सब मेरे को ये बताओ कि 4 2 + 2 होता है कि नहीं होता है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस भैया भैया मेरी चार्जिंग खत्म हुई। 2 + 2 4 ही होता है ना, राइट। यस भैया 4 को मैंने 2 + 2 लिख दिया, 2 + 2 लिख दिया, एंड आगे का जैसे लिखा हुआ है मैं सेम कंटिन्यू कर दिया मैंने, ठीक है। 2 + 2 को मैंने यहाँ पे × 2 कर दिया, ठीक है। सो 2 + 2 × 2, can I say that this simply means writing 2 + 2 basically 2 times? इस 2 + 2 को अगर मैं 2 बार लिख दूं, देन इसका इस × 2 का सेम ही मतलब है। 2 + 2 ये यहाँ पे ये 2 + 2 एक बार लिखा हुआ है, इस 2 + 2 को मैं 2 बार लिख दूं तो, ठीक है। तो एक बार हमारे पास 2 + 2 लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड टाइम जब मैं इसको लिखूंगा तो वापस से मैंने 2 + 2 लिख दिया। 2
+2। अब मैं सबको ऐड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, फिर से मेरे पास 8 आ गया। सो कहना इसे सेम आंसर आ गया। यस भाई, यस हाँ क्या गया, सेम ही आंसर आया। ठीक है, एक बार इसको भैया। भैया मीन्स मतलब हम डिफरेंट प्रोसेस, हम मतलब मेथड लेते हैं पर आंसर सेम ही आता है। आंसर सेम ही आता है। अभी हम ये ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा ना, उसको हम छोटे एग्जाम्पल से समझने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में, हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे हमने क्या किया, बड़ा नंबर था, इस बड़े नंबर को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया। ठीक है, हमने इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिख दिया बेसिकली 200, 40 और 5। सिमिलरली अभी मैं इस छोटे एग्जांपल के हेल्प से समझ रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को 245 मल्टीप्लाइड बाई 8 करना था, 245 को मैंने छोटे नंबर्स में तोड़ दिया। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना था, तो मैंने 4 को जस्ट समझने के लिए छोटे नंबर्स में तोड़ दिया। तो 4 को कितना छोटा हम तोड़ सकते हैं, 2+2 कर सकते हैं, तो 2+2 को मैंने कर दिया। सो अगर मैं इस चीज को सेम फॉर्म में अरेंज कर दूं, ठीक है, सेम फॉर्म में अरेंज कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने वो बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 को यहाँ 2 लिखा एंड यहाँ 2 लिखा, राइट? कैन आई से दैट और नॉट? कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इस 2+2 को 2 इधर रख दूं और 2 इधर लिख दूं। कूल। अब ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 को मैंने इधर रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हर डिजिट को उठा के हर जो हमने तोड़ा हुआ पार्ट था उससे मल्टीप्लाई करते जा रहे थे एक एक करके। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ गया। ठीक है, 4 4 तो आ गया, पर अब फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सेम चीज को जब मैंने खोल के देखा था तो क्या हो रहा था, 2+2+2 दो बार ऐड हो जा रहा था, राइट? 2 बार ऐड हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सो बेसिकली सेम चीज को अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरे पास 4 और 4 आ गया। फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए आई विल सिंपली ऐड दीज टू नंबर्स। इफ आई ऐड दीज टू नंबर्स तो 4+4 मेरे को क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, राइट? सेम आंसर पे मैं पहुंचा या नहीं पहुंचा? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर क्लियर टिल नाउ। यस भैया, यस भैया। So everybody is clear. So similarly, अब 245 multiplied by 8 करने के लिए what I will do is to achieve at my final answer, I will simply add them horizontally. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो आंसर्स आ गया उनको मैं ऐड करते जाऊंगा। 1600 + 320 + 40, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो फाइनल आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी ऐड करके बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर। I will do it in my brain. Let's see if I can solve this in my brain. 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, and 1960. So I have got the answer 1960. Are all of you getting 1960 as your answer? Yes. 1960 आ रखा है। Great. So we arrived at the correct answer. Woohoo, great, everybody learned this really tough concept of lattice method. Great, man. All of you, I want all of you to give a pat on your back. Give a quick pat on your back. All of you learned this really tough method in mathematics. अभी आगे जाते जाते हम लोग और टफ सम सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते हैं अभी आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि while planting rice trees, कल हमने राइस के बारे में पढ़ा था, राइट? कि राइस जो है बेसिकली हम ज्यादा पानी वाले एरिया में उगाते हैं, तो अभी हम लिटरली उगाना चालू कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ साइंस नहीं, यहाँ पे मैथ्स भी आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, हमने 28 रोज बना दिया। 28 रोज बना दिया। रो मतलब क्या होता है, रो मतलब पता है ना सबको क्या होता है? जब आप बेसिकली जब आप खेती कर रहे होते हो तो क्या होता है, ऐसे आप मिट्टी में गड्ढा करके ऐसे लाइन बना रहे होते हो ना अलग अलग, और उस एक लाइन में हम मल्टीपल बीज डालते जाते हैं। पहला सीड यहाँ डाल दिया हमने, दूसरा सीड यहाँ डाल दिया, ठीक है, तीसरा सीड यहाँ डाल दिया। डालते कि नहीं डालते? फिर यहाँ पे प्लांट आ जाता है, राइट? फिर अगले अगले रो में हम ऐसे सीड डालते जाते हैं, तो ऐसे प्लांट आते जाते हैं। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि हमने इस टाइप से हमने 28 रोज बना दिए। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इस तरीके से करते करते हमने 28 बना दिया, 28 रोज बना दिया। और हर एक रो में कितनी सीड है, हर एक रो में 244 सीड डाले हैं। तो यहाँ पे पहली रो में 244 सीड डाले हैं, ठीक है, दूसरी रो में 244 सीड डाले हैं, ठीक है, ऐसे ही नीचे टोटल 28 रोज है, हर रो में हमने 244 सीड डाले हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ, आंसर मेरे को निकालने के लिए आप पूछ रहा है कि टोटल सीड्स कितनी चाहिए, मेरे को 244 को 24 टाइम्स प्लस करना होगा।
244 को 28 टाइम्स प्लस करना होगा ना मेरे को, क्योंकि पहले रो में 244 है, दूसरे रो में 244 है, ऐसे ही करते करते 28 रोज में 244 सीट्स है। तो टोटल सीट्स निकालने के लिए क्या मैं 244 को आपस में प्लस करते जाऊंगा ना, करते जाऊंगा कि नहीं करते जाऊंगा? गिव मी अ थम्स अप। करते जाऊंगा, ठीक है। अब सिंस मेरे पास 28 रोज है, 28 रोज है, तो मैं 244 को 28 टाइम्स प्लस करूंगा अपने आप में। तो इसका सेम मतलब ये निकल के आ रहा है कि 244 को जब मैं आपस में 28 टाइम्स प्लस कर रहा हूं, तो मेरे को क्या करना है, 244 को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली 28 से। करना है कि नहीं करना है? करना है ना, राइट? यस। अब बताओ, अब 244 को 28 से मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा मेथड हम लगाएंगे जिससे सबसे जल्दी आंसर आ जाए? प्लस प्लस करेंगे। लैटिस मेथड। यस, ऑब्वियसली करेक्ट, वी विल अप्लाई लैटिस मेथड, क्योंकि 244 को अगर हम प्लस करने बैठेंगे तो यहाँ पे आपको एक दो बार प्लस नहीं करना है, आपको 28 टाइम्स प्लस करना है, ठीक है। मैं 2-4 बार लिखने में हालत खराब हो जाती है मेरी, 28 टाइम्स कैसे लिख के इसको सॉल्व करोगे? करने को कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट कितना टाइम लगने वाला है उसमें, ठीक है। एक बार लिखा, दो बार लिखा, इससे 28 बार लिखोगे, फिर उसके उसको जोड़ोगे हर एक यूनिट प्लेस को, फिर कैरी दोगे ऊपर, सुबह से शाम हो जाएगा सॉल्व करते करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिमाग का यूज करते हुए फटाफट इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद अपनी लैटिस टेबल बना देंगे, एंड फिर उसके बाद फटाफट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। पिछले एग्जाम्पल पे हमारे पास क्या था, सिर्फ एक डिजिट था। यहाँ इस एग्जाम्पल पे हमारे पास बेसिकली ऊपर 3 डिजिट्स है, नीचे 2 डिजिट्स है। तो पहले नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया 240 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया। सेकंड नंबर को वर्टिकली अरेंज करेंगे, इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म 28 का क्या होगा, 20 + 8। इसको हम लोग अरेंज करेंगे वर्टिकली, यहाँ अरेंज कर दिया वर्टिकली 20 और 8। अब उसके बाद हर एक नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई करते चलेंगे। सबके पीछे 0 0 है, तो हमको बस एक डिजिट टेबल याद रखनी है और उसके पीछे हम 0 0 डालते जाएंगे। सो नाउ ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू दिस विद मी, ठीक है। हर एक डिजिट का आई विल कॉल आउट अ नेम एंड दे विल हेल्प मी सॉल्विंग फॉर दैट रेस्पेक्टिव पोजीशन। So for the first one, I would like to call off Malhar. Malhar, quickly come off mute and tell me what will be the answer for the first box. आंसर है 4 क्या आंसर है? 44। 44 आ रहा है क्या? देखो बेसिकली मैंने क्या बताया था, जीरोस को अभी रख ले, रहने दो। अभी सिंपली नॉन जीरो जो डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2। यहाँ पे भी नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 4 होगा ना, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, कितने जीरोस है? अरे मल्हार देख के करो कितने जीरोस है। नंबर देखो ना, 200 में कितने जीरोस है? 2 भैया। और 20 में 1। टोटल कितने जीरो हो गए? 244। 200 में 2 जीरो है, ठीक है। यस भैया। 20 में 1 जीरो है। यस। टोटल कितने जीरो हो गए? 10 में भैया 2 और 1 कितना होता है मल्हार? 2 + 1 कितना होता है? 4 भैया। 2 + 1 4 होता है क्या? यहाँ पे कितनी उंगलियां दिख रही है? 3 भैया। तो 2 + 1 क्या हुआ? 3 भैया। 2 भैया। 2 + 1 क्या हुआ मल्हार? 400 भैया। अरे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, पहले बात, बाकी सब शांत रहो। I'll come to you. I'll give opportunity to everyone. हमारे पास टोटल 6 कॉलम्स है, हर एक कॉलम का आप सॉल्व करोगे। तो मल्हार टोटल हमारे पास 3 जीरोस हो गए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उन 3 जीरो को उठा के रख दूंगा। अब काउंट भी मत करो, आपको काउंट करने में भी टाइम लग रहा है, तो सिंपली आंख बंद करके 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। उसके बाद यहाँ पे जितने जीरो लिखे हैं उसको सिंपली उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे 2 जीरो कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे 1 जीरो कॉपी पेस्ट कर दो।
अपने आप आपके 3 0 आ गए यहाँ पे। ठीक है, इसको आराम से सोते सोते भी कर सकते हो आप, इतना सिंपल है ये। ठीक है, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट को उठा के मल्टीप्लाई करना है और फिर जीरोस को उठा के रख देना जैसा का जैसा है। अगला डिजिट के लिए कौन हेल्प करेगा मेरे को? सिद्धार्थ, लेट्स हियर फ्रॉम यू। सिद्धार्थ, गो अहेड। 800. 800, एब्सोल्युटली करेक्ट, 800। नेक्स्ट डिजिट के लिए who is going to help? Swaraj, would you like to try it for next digit? फोर। स्वराज, क्या होगा इसका? यस। 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होगा? 4 into 2 करो ना, 4 into 2 क्या होता है? 48 भैया। 48 भैया। लोग तो समझ नहीं रहे हो क्या जब मैं समझा रहा हूँ? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्या मतलब है? Can I tell? वेट let me help स्वराज over here. 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कि 4 को हम 2 बार ऐड कर रहे हैं खुद से। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 सिंपली मींस 4 + 4, है ना? भैया मैंने 12 का टेबल ऐड किया था इसलिए मेरे को पता है। 48. Yes, I know you know it. Let me help other students who have not understood it yet. Okay. हाँ स्वराज बोलो, 4 + 4 क्या होता है? चार इधर है, 4 में 4 और ऐड कर दिया, कितनी 8 भैया। 8 8 आ गया। 8 आ हाँ, गया। 8. सो एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब भी 8 ही होगा ना? यस। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 आ गया। अब नंबर ऑफ जीरोस बताओ, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो है? कोई जीरो यहाँ पे दिख रहा है आपको? नो। कुछ नहीं यहाँ पे। अगले डिजिट में चेक करो, इस डिजिट में चेक करो, यहाँ पे कोई जीरो है क्या? यस। कितने जीरो है? भैया। कितने जीरो है? 1 सिंपली वन जीरो को उठा के यहाँ पे रख दिया, क्या आंसर आ गया? भैया। 800। फाइनल आंसर क्या आ गया स्वराज? 80। स्वराज, व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर ये नंबर आ गया ना हमारा। इस नंबर को क्या पढ़ोगे आप स्वराज? 80। 80। फाइनल आंसर 80 आ गया। समझ में आ गया अभी आपको स्वराज कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं? यस। ग्रेट। चलो अब अगले डिजिट के लिए चलेंगे। अगले डिजिट के लिए कौन करके बताएगा मेरे को? अर्जुन, लेट्स हियर फ्रॉम यू। अर्जुन, अर्जुन कहाँ गया? अर्जुन कहाँ गया? अर्जुन नहीं है ना? 1600. 1600। ग्रेट। समृद्धि, अगला वाला बताओ। बताओ। 8 4 है ना? 32। फाइनल आंसर क्या आएगा? 320। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला वाला कार्तिकी, आप ट्राई करो। कार्तिकी कहाँ गई? यस। हाँ करो। क्या करना है ये पता है ना आपको? इस बॉक्स के लिए आंसर बताना है। हमने यहाँ तक कर लिया, अभी यहाँ तक कर लिया। मुझे फर्स्ट लगा कि हमें टेबल पढ़ना है और फिर उसका आंसर बताना है। हाँ तो आंसर ही तो बताना है। अब यहाँ पे हम 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर रहे हैं ना। सिंपली 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होगा? 32। 32। एब्सोल्युटली करेक्ट, 32 पहुंच गए।
तो अभी हमारे सारे बॉक्सेस भर गए, सारे बॉक्सेस भर गए, तो फाइनल स्टेप हमारा क्या था, बताओ फटाफट, फाइनल स्टेप क्या था? ऑल ऑफ यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स। भैया यार हाथ खड़ा करो। भैया कौन है ये? मनीष, Manish, you know na rule of the class. You have to raise your hand if you want to speak something. Yes, what do you want to speak? भैया मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। Okay, Manish. हो रहा है। Okay, Manish, you can. अब चार्जिंग में लगा दो अपना फोन, ठीक है? जो भी आपको डाउट आ रहा है वो क्लास के बाद पूछ लेना मेरे से, ठीक है? कूल। ठीक है, तो कौन बताएगा? अर्जुन, आप बताओ क्या करेंगे अभी हम? यस भैया। क्या करेंगे अभी? हमारे पास ये सारे आंसर्स तो आ गए, लेकिन हमको चाहिए था, क्या चाहिए था हमको आंसर? फाइनली आंसर हमको चाहिए था कि 244 मल्टीप्लाइड बाय 28 क्या हो रहा है। तो उस फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? हमें चैट बॉक्स में फाइनल आंसर टाइप करना है। फाइनल आंसर टाइप नहीं करेंगे, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेसिकली क्या करेंगे? लगा दिया। इतने सारे जो आंसर्स निकल के आए, इसका हम क्या करें? क्या करें हम इसका? फाइनली फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे थे? लैटिस मेथड तो कर रहे थे, लेकिन अभी इन आंसर्स का क्या करें? मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने ऑलरेडी। अभी ये जो सारे आंसर्स निकल के आए, इनको हम आपस में सबको ऐड कर देंगे, राइट? सबको ऐड करते जाओ यहाँ पे, इसको हॉरिजेंटली ऐड कर दो, ठीक है? 4000 प्लस 800 प्लस 80 क्या होगा आपका? 4000 प्लस 800 प्लस 80, 4880 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? 4880 हो जाएगा। यस। 1600 प्लस 320 प्लस 32 कितना होगा? 1952 आ रहा है मेरा, आप लोग चेक करो आपका भी सेम आ रहा है क्या? 1600 प्लस 320 प्लस 32। यस भैया। सेम आ रहा है? यस। यहाँ से आंसर मेरा ये निकल के आ गया, ठीक है? पहले हॉरिजॉन्टल एडिशन से ये निकल के आया, अगले एडिशन से ये निकल के आया। अब फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए अब हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। इन दोनों को आपस में प्लस करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? आई विल डू इट फॉर माई मम्मी एज वेल। 2 4 पे लगा भैया, मेरा 1952 आ रहा है। हाँ वो सही है। अभी इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका? 4 + 1 5। बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? 600 6832। 6832, ठीक है? बाकी सबका क्या आ रहा है? जिसका जो आंसर आ रहा है टाइप इट इन द चैट बॉक्स। इन दोनों को ऐड करने पे क्या फाइनल आंसर आ रहा है? मैंने मेरा आंसर चैट बॉक्स में डाल दिया है। 6832। मल्हारी सिंह 6832। वेटिंग फॉर अदर पीपल। Samruddhi 6832. Great. So which is the correct answer? 832 is the correct answer. So basically हमने क्या किया, नंबर्स को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, ठीक है? पहले नंबर को हॉरिजॉन्टली लिखा, दूसरे नंबर को वर्टिकली लिखा, फिर उसके बाद हर एक नंबर को उठाया, मल्टीप्लाई करते गए हम हर एक पोजीशन से, कॉलम्स को भरते गए, दूसरे नंबर को उठाया, सेम चीज रिपीट करी, जो आंसर आया सबको उठा के आपस में प्लस कर दिया एंड फाइनल आंसर आ गया। सो अगर सभी को ये मेथड समझ में आया है, अभी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप सॉल्व कर लोगे लेटेस्ट मेथड से, गिव मी अ थम्स अप। अगर अभी आपको इस मेथड में कोई डाउट है देन रेज योर हैंड। Great. So all of you have understood this. Now who is courageous enough who will quickly explain me this? कौन फटाफट एक्सप्लेन कर देगा ऐसे? कौन एक्सप्लेन करेगा? Shravani, would you like to try?
आप एक्सप्लेन कर पाओगे इसे? कौन सा भैया? लैटिस मेथड श्रवणी। मेथड क्या? 1 सेकेंड है भैया। भैया मुझे नहीं पता, सॉरी। नहीं पता मतलब किसी को भी नहीं पता था क्लास से पहले? अभी क्लास में बैठ के सबने सीखा ना, तो आपने जो सीखा आप बस वो बताओ। किसी बाकी सबको पता था क्या क्लास से पहले लैटिस मेथड? सबने अभी क्लास में ही सीखा ना, सबने क्लास में ही सीखा, राइट? क्लास में अगर आप ध्यान दे रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, देन आपने सीख लिया होगा। एंड अगर आप नहीं सुन रहे हो, वीडियो स्विच ऑफ करके बैठे हो, तो नहीं समझ में आएगा आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो ऑन करके बैठो। ठीक है, चलो। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल आस्क समृद्धि टू एक्सप्लेन इट फॉर द एंटायर क्लास। In this method, firstly we will write the numbers, both numbers in expanded form, and then we will multiply it. And when we multiply it, then which answer has come, we will add it, and which is the final answer. That's answer. That's the answer. Absolutely correct. Absolutely correct. So now the part of the class for which all of you have been waiting for, the breakout rooms, the breakout room activity, in which you are going to solve some really tough and challenging problems among your teams, and let's see which team is going to win. The team which wins this activity will be getting a good prize, because this activity has some tough questions. So what you will do, you will spend good 15 minutes in your breakout room and you will solve these four questions. First question 819 multiplied by 12. Second question 545 multiplied by 38. Second is a word problem. You will figure out yourself क्या करोगे आप इसमें. फोर्थ वाला भी खुद से फिगर आउट करोगे. एंड ये चार क्वेश्चंस आप आपस में डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे. सभी का आंसर यू विल सेंड इट टू योर ग्रुप लीडर्स विल सेंड मी द आंसर्स ऑफ ऑल फोर टू मी. अगर आपके ग्रुप से कोई बच्चा सर्टेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, देन आप एज अ ग्रुप जो भी सॉल्व कर रहे हो उसके आंसर्स मेरे को सेंड करोगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन नंबर. आपके आंसर्स में क्या डला होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर डला होना चाहिए, आंसर डला होना चाहिए, एंड आपका ग्रुप नंबर डला होना चाहिए. Great. If you are clear what are we doing in breakout room, give me a thumbs up. Meanwhile, I will ask Karthiki to quickly explain what are we going to do in breakout room. Going to breakout room and answer the question, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. एंड आंसर लिखते वक्त उसके नंबर्स लिखने 1 2 एंड ग्रुप का नंबर लिखना है. एंड ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को कौन सेंड करेगा? ग्रुप लीडर. Great. So we are going to spend 15 minutes in the breakout room and I am opening the rooms now. Arjun, I can see your hand is raised. Do you have any question? भैया लीडर कौन होगा? लीडर मैं आके बता दूंगा हर एक ग्रुप में आके. I will announce who's the leader. Arjun, do you have any question? Arjun, I can see your hand was raised. No question. You are showing a thumbs up, thumbs down. मतलब क्वेश्चन नहीं है या कोई डाउट है? कुछ नहीं ना, ठीक है. I'm opening the breakout rooms. Start joining your breakout rooms. Someone can take a picture of the questions and put it in the WhatsApp group as well.